active filters. Now these active filters, what are nothing but, you can see from the diagram, this part is the low pass filter followed by an operational amplifier in non-inverting mode. तो non-inverting mode में you know the gain of the amplifier is given by the voltage gain AV, that is nothing but 1 plus RF by R, 1 plus RF by R. या तो V नॉट के टर्म में लिखेंगे तो V नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R इंटू V इन, ये हम जानते हैं. तो यहाँ पे R2 बाई R1 लिया हुआ है तो दैट विल बी 1 प्लस R2 बाई R1 इंटू V इन. और V इन हमको कौन सप्लाई कर रहा है? V इन हमको इस जगह से मिल रहा है, इस पॉइंट से. सो V इन इज नथिंग बट द, V इन क्या है? V इन इज नथिंग बट द आउटपुट ऑफ लो पास फिल्टर, यही है. तो इफ आई रिक्वायर, यू कैन सी दिस इज अनदर सर्किट, दिस सर्किट एंड दिस सर्किट दे आर द सेम, लेकिन इसमें क्या है? इट इज नथिंग बट सिंपली अ बफर सर्किट और ए यूनिटी गेन ऑप एम्प. यू नो व्हाट इज यूनिटी गेन ऑप एम्प? यूनिटी गेन फीडबैक सीधा हम यहाँ पे लगा दिए. सो व्हाट हैपेंस इज द गेन बिकम्स इक्वल टू 1. तो इसका क्या काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ. इट इज जस्ट यूजिंग एज अ बफर. यहाँ पे जो वोल्टेज हमको मिल रहा है वही वोल्टेज हमको यहाँ मिलेगा. सो ए मच बेटर जेनरिक सर्किट इज दिस वन. इस सर्किट में हमको क्या हो रहा है? आई कैन change the gain. If I want, I may change the gain. By changing the values of R2 and R1, what I can do is, I can introduce some gain in the output. तो हमको पहले एक फिक्स टाइप का गेन मिल रहा था लो पास सर्किट में. इट वाज काइंड ऑफ दिस. नाउ अभी अगर हम चाहें तो आई कैन टेक अ हायर गेन एंड आई कैन स्टिल कम डाउन टू दिस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. ये फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम ही रह जाएगा. द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम इन बोथ द केसेस. Right, this is FC, this is also FC, these two are equal. लेकिन इसमें what happens is you get some certain amplification in case of this particular circuit by changing the value of R2 by R1. So the critical frequency will remain the same. FC is equal to 1 by 2 pi RC. That will be the critical frequency for the low pass filter. सो इसमें इसीलिए एक्टिव फिल्टर में सिर्फ यही है कि अपार्ट फ्रॉम द लो पास फिल्टर स्टेज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कनेक्ट एन operational amplifier or a transistor amplifier and you can get some desired gain across the output. If a gain is required, then we get this kind of a gain due to the amplification provided by this operational amplifier in this case. तो यहाँ इस सर्किट से ये बहुत सारे किताब ये यूज करते हैं. इसमें यूनिटी गेन है, यानी दिस इज नथिंग बट अ बफर. जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ मिलेगा. इसमें क्या है कि इफ यू फिक्स R2 by R1 equal to 1, तो it will behave as a buffer and I can change the values of R2 by R1 in order to get the desired gain from the operational amplifier. So this becomes the active low pass filter. Same, exactly the same, the theory remains the same as that of passive low pass filter, but only thing is here we have a operational amplifier and because of that we get this additional gain. So इसको अगर हम V आउटपुट डैश बोलते हैं तो दिस इज नथिंग बट V0 इज इक्वल टू 1 प्लस RF बाई R इंटू V0 डैश. का है V0 डैश? बिकॉज दिस V0 डैश इज नथिंग बट V इन. तो ये और ये सेम चीज है. सो दिस इज व्हाट इज माई एक्टिव लो पास फिल्टर. सेम विल बी एक्टिव हाई पास फिल्टर. यू कैन सी दे आर द सेम. इट इज द सेम एक्टिव हाई पास फिल्टर. इसमें ये जो पार्ट है, दिस इज माई high pass filter stage. This is the unity gain buffer. So here it is V0 dash. So here I obtain what? V output. This is equal to 1 plus RF by R into V0 dash. ठीक है? Because V0 dash is nothing but V in. और इसके केस में भी the critical frequency F remains the same 1 by 2 pi RC because critical frequency तो ये सर्किट दे रहा है. It has got nothing to do with this part of the circuit. So there are two parts. One is you see high pass filter part and another one is non-inverting amplifier. This is unity gain amplifier, but this one is a non-inverting amplifier. So it will give you this kind of a gain, but the cutoff frequency remains the same. So the working formula
the theory etc. for active high pass filter remains the same. Then the next one is active band pass filter. Here you can see what is done. What is band pass filter? तो दो फिल्टर स्टेज है. एक फिल्टर स्टेज में हम ये किए हैं, आई मेक दिस सर्किट, यू कैन सी दिस इज द सर्किट. इस सर्किट में हम इसको लगा के रखे हुए हैं. दिस विल गिव मी व्हाट? दिस इज नथिंग बट माय हाई पास सर्किट एंड दिस इज व्हाट इज माय लो पास सर्किट. तो हाई पास एक्टिव फिल्टर बना लिए, उसके बाद एक लो पास एक्टिव फिल्टर बना लिए, दोनों को जोड़ दिए. सो दिस इज व्हाट इज माय एक्टिव बैंड पास फिल्टर. दो अलग अलग, दिस इज नथिंग बट माय हाई पास फिल्टर एंड दिस इज व्हाट इज माय लो पास फिल्टर. हम जानते हैं वो सर्किट मेरा ऐसा ही था. दिस वाज माय सर्किट, ये मेरा सर्किट हुआ करता था. दिस वाज माय आउटपुट. तो पहला हमारा हाई पास सर्किट क्या दे रहा था? ये इस तरह का कर्व हमको देना शुरू किया. उसके बाद का लो पास सर्किट जो हमको इस तरह का कर्व देना शुरू किया. तो आई ऑब्टेन दिस एज द बैंडविड्थ. लेकिन यहाँ पे क्या है? इफ आई रिक्वायर आई गेट द डिजायर्ड गेन. I get the desired gain. So this is what is your active band pass filter. और नेक्स्ट लास्ट वाले सीक्वेंस में क्या होगा? हम लोग दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर दिए थे. सो वॉच दिस. दिस इज द कॉमन सोर्स. कॉमन सोर्स के बाद दोनों का आउटपुट भी यहाँ पे कॉमन कर दिए हैं. राइट, दिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड. ये इसका रिक्वायरमेंट जरूरत भी नहीं है, बट ये सिर्फ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में यहाँ पे डाला हुआ है एज अ समिंग सर्किट. सो व्हाट यू गेट इज माइनस RF by R V in. तो इस पॉइंट पे हमको मिल रहा है V in. ठीक है. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस इज 10 किलो ओम, दिस इज 10 किलो ओम. ये दोनों 10 किलो ओम है. सो देन व्हाट हैपेंस इज दिस इज इक्वल टू 1. सो RF by R जो है कुछ नहीं होगा. देयर विल बी ओनली अ फेज चेंज बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन, बिकॉज ये इन्वर्टिंग इनपुट पे जुड़ा हुआ है. दिस इज व्हाट? दिस इज माय लो पास सेक्शन. दिस इज व्हाट इज माय हाई पास सेक्शन. तो लो पास हमको कुछ इस तरह का दे रहा है और हाई पास जो है ये हमको कुछ इस तरह का दे रहा है. तो ये दिस पार्ट इज स्टॉप्ड, दिस इज अलाउड एंड दिस इज अलाउड. सो दीज एक्टिव फिल्टर्स आर वेरी वेरी सिंपल. अदर वे, द फर्स्ट ऑर्डर जब भी हम देख रहे हैं तो दीज फिल्टर्स आर वेरी वेरी स्मॉल, बट एज सुन एज वी गो हायर अप इन द ऑर्डर and we try to get this kind of a curve, which is much closer to the ideal curve. So then we have certain other criteria which can be applied to these filters so that we can reach these ideal characteristics, and of course a very flat pass band and other criteria are there for higher order filters. So this is all about your active filters.